Hello students, in today's lecture we will discuss how to solve problems on the topic testing the hypothesis that population mean is mu. In previous lecture, we discussed different terminologies that we are going to use repeatedly. We also discussed a procedure to solve problems on this topic. You please go through that procedure again. We will discuss it briefly here. First step was to set the null hypothesis. It will be a definite statement about the population parameter. This null hypothesis may be accepted or rejected. That depends upon the calculated value and critical value. Then we will set the alternate hypothesis. It will be complement to null hypothesis. Then we will be testing the given statistics with the help of given data. Sample के लिए जो भी values given है, they are called as statistics. और same values अगर population के लिए given है, so we will call them as parameters. Then we will decide about the level of significance. Then we will identify critical value, and finally we will conclude the problem. We will form the decision depending upon the critical value and calculated value. So see the question. Problems are very simple. We are going to use this formula which we obtained by central limit theorem, which says that whatever may be the given distribution, it will follow a normal distribution if sample size is large enough. So we are assuming that size to be more than 30. So z equal to x bar minus mu upon sigma upon root n. So x bar is mean of sample statistics, mu is mean of population, means it is a parameter. Sigma is a standard deviation of population, so again a parameter, and n is the number of sample. It is the size of sample. So just see the question. You will have one question from this topic. Generally ये question number 1 में आता है. See the question. A machine is set to produce a metal plate of thickness 1.5 centimeter with standard deviation of 0.2 centimeter. A sample of 100 plates produced by the machine gave an average thickness of 1.52 centimeter. Is the machine fulfilling the purpose? That is the question here. Okay, so we are having a machine which is producing some plates of this thickness 1.5 centimeter और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.2 सेंटीमीटर. मतलब आप डिफरेंट प्लेट्स लोगे तो ये थिकनेस होगा प्लस और माइनस 0.2 सेंटीमीटर से डेविएट. अब हम सैंपल ले रहे हैं, रैंडम सैंपल ऑफ 100 प्लेट्स फ्रॉम दैट पॉपुलेशन. यहाँ पर पॉपुलेशन कितना है हमको नहीं पता है, टोटल प्लेट्स कितने हैं वो हमको यहाँ पे नहीं पता है. वहां से हम ले रहे हैं एक स्मॉल रैंडम सैंपल ऑफ 100 प्लेट्स. 100 प्लेट्स का हमने एवरेज थिकनेस फाइंड किया तो आंसर आया 1.52 सेंटीमीटर. तो हमको आंसर करना है इज द मशीन फुलफिलिंग द पर्पस. व्हेन इट विल बी फुलफिलिंग द पर्पस, व्हेन एवरेज थिकनेस विल बी 1.5 सेंटीमीटर. रिकॉल कीजिए प्रोसीजर क्या है सॉल्यूशन के लिए. सबसे पहले फॉर्म करना है नल हाइपोथेसिस. ये क्या होगा? पॉपुलेशन का मीन. यहां पर हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं दैट पॉपुलेशन मीन विल बी म्यू. तो यहां पे क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा आपको पॉपुलेशन मीन, दैट विल बी सिंपली द नल हाइपोथेसिस. सो नल हाइपोथेसिस सपोज हमने डिनोट किया h नॉट से, म्यू इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. पॉपुलेशन का एवरेज गिवन है यहां पे, एवरेज थिकनेस ऑफ दैट प्लेट्स इट इज 1.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज टू सेट अल्टरनेट हाइपोथेसिस. इट इज कॉम्प्लीमेंट टू दिस. So mu not equal to 1.5 centimeter. So means it is a two-tailed test. Okay, अगर not equal है तो two-tailed, अगर greater than है सिर्फ तो one-tailed और right-tailed, और less than है so again one-tailed और it will be called as left-tailed test. तो ये हमको क्वेश्चन में पता चल जाएगा. यहां पर कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं गिवन है कि ये ग्रेटर होगा या लेस, सो हम लिखेंगे सिंपली नॉट इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है. अब सेकेंड स्टेप है हमको गिवन स्टैटिस्टिक्स टेस्ट करना है. तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं. म्यू गिवन है, पॉपुलेशन का मीन 1.5 सेंटीमीटर, सिग्मा इज ऑल्सो गिवन, यह है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन 0.2 सेंटीमीटर, सैंपल का साइज गिवन है 100 और सैंपल का भी मीन गिवन है 1.52 सेंटीमीटर. So all these four things which we required in that formula are given. So we can easily compute this z. Formula है x bar minus mu upon sigma upon root n. So x bar, mu, sigma और root n का आप वैल्यू पुट कर दीजिए. You will get the answer for z. It is 1. ये टू टेल्ड टेस्ट का प्रॉब्लम है. सो वी विल ट्राई टू गेट पॉजिटिव वैल्यू हियर. तो अगर आंसर निगेटिव आया सो यू जस्ट टेक मॉड ऑन बोथ साइड, यू विल गेट द पॉजिटिव आंसर. तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, आंसर इज 1. अब नेक्स्ट हमको चाहिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ये क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी दैट नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड.
सो दैट्स वाई वी विल कीप इट एज स्मॉल एज पॉसिबल. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये आपका चॉइस है. यू कैन गो फॉर आइदर 1% और 5%. से आई एम सेटिंग इट फॉर 1%. सपोज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया हमने 1% मीन्स 0.01. अब इस 1% के लिए फाइंड करना है क्रिटिकल वैल्यू. सो एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्रिटिकल वैल्यू क्या है? 2.58. तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. हमको कैसे मिल रहा है? टू टेल्ड टेस्ट के लिए या राइट और लेफ्ट टेल्ड टेस्ट के लिए, या बेटर है आप याद कर लीजिए, जनरली प्रॉब्लम्स होते हैं टू टेल्ड टेस्ट के. तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो जेड अल्फा होगा 2.58. अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो जेड अल्फा होगा 1.96. ओके. अब हमको फॉर्म करना है डिसीजन. हमारा कंक्लूजन क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड क्रिटिकल वैल्यू. ओके. तो हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में? इफ दिस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड. क्योंकि हमारा पॉइंट आ जाएगा एक्सेप्टेंस रीजन में. आप रिकॉल कर सकते हो, हमने वहां पर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ट्रेस किया था और ये सब पॉइंट्स डिस्कस किए थे. सिमिलरली अगर आपका है कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा रिजेक्शन रीजन में और क्रिटिकल रीजन में. सो नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड. तो यहां पे कैलकुलेटेड वैल्यू 1 है, क्रिटिकल वैल्यू 2.58 है. सो ऑफ कोर्स 1 इज लेस देन 2.58. सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. इसका मीनिंग क्या हो गया? नल हाइपोथेसिस क्या था? पॉपुलेशन का मीन है 1.5 सेंटीमीटर. सो दैट इज एक्सेप्टेड. मीन्स मशीन इज फुलफिलिंग द पर्पस. ओके. तो प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल हियर. आपकी 4 स्टेप्स तो है, हर क्वेश्चन में सेम रहेंगी. नल हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल वैल्यू और डिसीजन. आपको सिर्फ सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला पता है, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस करके z फाइंड करना है. लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 मेंबर्स मींस n इज गिवन हियर 400 इज फाउंड टू हैव मीन. ये किसका मीन है? सैंपल का. तो इसके लिए नोटेशन यूज होगा x बार. Can it be reasonably regarded as sample drawn from large population whose mean is 5 centimeter? ये किसका मीन है? लार्ज पॉपुलेशन का. मीन्स इसके लिए हम नोटेशन यूज करेंगे म्यू. एंड वेरियंस इज 4 सेंटीमीटर. ओके. सो अगेन दिस क्वेश्चन वाज इन क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 5 मार्क्स. ओके. सो सबसे पहले हमने सेट किया नल हाइपोथेसिस. इट इज अबाउट द पॉपुलेशन मीन. सो इट इज म्यू इक्वल टू 5. अल्टरनेट हो गया म्यू नॉट इक्वल टू 5. यहां पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आप गिवन डेटा लिख लीजिए पहले. पॉपुलेशन का मीन गिवन है, सैंपल का मीन, सैंपल का साइज और वेरिएंस गिवन है पॉपुलेशन के लिए. तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट. यूजिंग द फॉर्मूला z इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n, यू विल इजीली गेट द आंसर फॉर z. दैट इज हियर 5.5 विद माइनस साइन. सो टू टेल टेस्ट के लिए हमने उसको पॉजिटिव किया तो मॉड ले लिया दोनों तरफ. मॉड ऑफ z इज 5.5. ओके. अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिर से गिवन नहीं है तो आपका चॉइस है. अगेन आई एम टेकिंग 1%. तो क्रिटिकल वैल्यू सेम हो गया 2.58. सो ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड वैल्यू है यहां पर 5.5 एंड क्रिटिकल वैल्यू इज 2.58. सो कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू. सो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. इसका मीनिंग क्या हो गया? पॉपुलेशन मीन इज नॉट इक्वल टू 5. इट विल बी आइदर ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5. एज आई टोल्ड यू प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल. See the next question. And it was for 5 marks in question number 1. Can it be concluded that average lifespan of an Indian is more than 70 years if a random sample of 100 Indians has an average lifespan of 71.8 years with a standard deviation of 8.9 years? Okay. So यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है पॉपुलेशन का मीन क्या है, सैंपल का मीन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या गिवन है. Average lifespan of an Indian is more than 70 years. So of course we are talking about here the whole population. So population का mean हो गया, average lifespan is given here 70 years. So mu is equal to 70. Then we are taking a sample of only 100 Indians. So sample का size हो गया n equal to 100. और उसका average given है 71.8 years. तो ये हो गया x bar. Then standard deviation for sample is given. So we will use the notation here S. So standard deviation of sample is unbiased estimator of standard deviation of population. So वहां पे सिग्मा गिवन हो या S कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फॉर्मूले में सेम नोटेशन यूज कर लीजिए जो क्वेश्चन में गिवन है.
तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे नल हाइपोथेसिस. सो इट इज ऑलवेज द पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू. So mu is equal to 71 here and alternate hypothesis is mu not equal to 71. Then testing the given statistics, हमने given data identify कर लिया. Population के लिए average given है 71, sample का size given है 100, sample का average is 71.8 and standard deviation for sample is 8.9. So notation will be S instead of sigma. Formula भी यहाँ पे हो जाएगा Z equal to x bar minus mu upon S upon root n. So substitute all the values and try to calculate Z. So answer will be 2.02. Level of significance is not given again. Say we are setting it to 1%. तो critical value हो गया फिर से 2.58. So what will be the decision? Since calculated value is less than critical value, null hypothesis will be accepted. Means average lifespan of Indian is 71 years. Okay. What if you are taking the level of significance 5%? उस केस में क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगा? 1.96. मीन्स अब हो गया कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा रिजेक्ट. सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा. ओके, प्लीज नोट दिस. सो इफ यू आर सेटिंग अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, क्योंकि वहां पे रिजेक्शन का प्रोबेबिलिटी 5% था, तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया. लेकिन अगर आप ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन रिड्यूस करोगे, से उसको आपने 1% कर दिया, तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया, मतलब एक्सेप्टेंस का चांस बढ़ गया. तो यहां पे नल हाइपोथेसिस हो रहा है एक्सेप्ट. Okay, so this is the way to solve problems to test the hypothesis that population parameter mean is mu. In next lecture, we will see the topic testing the difference between means. Thank you.